हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स में से सब टॉपिक्स क्या क्या रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा की, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट, आइगन वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देयर इज अ अनाउंसमेंट। You can download our app from Google Play Store, and I have also provided the link of our app in the description box. You can see the rating of our app has been 5-star. If you open our app, you will see this complete engineering mathematics course for GATE 26 aspirants. The branches who can enroll for this course are aerospace, agriculture, biotechnology, biomedical, civil, chemical, electrical, electronics, instrumentation, mechanical, production, material, mining, petroleum, and textile and fiber science students can also enroll for this course. In this course, you will get live lectures along with the recorded lectures and as well as free test series. If you go to the content section, you will see I have provided the structured course on each topic. Like linear algebra, you will see each and everything starting from the basics towards the advanced level. For each topic, I have provided the exhaustive content, and this content you can cover in just 20 days. So what you have to do? You have to download our app and you can enroll for this course. So if we talk about engineering mathematics, so what are the topics that are in the syllabus of engineering mathematics? So you will have linear algebra, जिसको हम लोग matrices and determinants भी बोलते हैं. Then we have vector calculus, then we have differential equation, then we have probability, and then we have complex numbers, then calculus, then numerical methods, and then Fourier and Laplace series, right? So अभी इन टॉपिक्स में से what are the topics that are most scoring? अगर मैं बात करूं ऐसे टॉपिक्स की जो कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर प्रोवाइड करेंगे, वो टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, एंड देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, देन वी हैव न्यूमेरिकल मेथड्स। ये चार टॉपिक्स आपको कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ इट्स दिसंबर and you have only 50 to 60 days left. So if you want to prepare all these topics, you can download our app and you can start preparing, and you can complete all the lectures along with the questions, concepts, PYQs, everything in just 20 days from our app, lectures and everything. Okay, so now let's talk about what are the important topics for linear algebra. अगर मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले बात आती है डिटर्मिनेंट्स के बेसिक्स की, जहां पर आपको बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन यू शुड नो अबाउट मैट्रिसेस बेसिक्स। देन मैट्रिसेस के बेसिक्स में आपको क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। एंड देन यू हैव आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जहां पर कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आपको आइगन वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का, वो पार्ट है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का, जहां पर कि आपको
प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, एंड देन मैट्रिसेस के बेसिक्स में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन आपके पास में जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, along with the basics of matrices, that is also important. And if I talk about rank of a matrix, this is second most important subtopic of linear algebra. And if you have time, you can prepare this system of equation as well. So these are the three topic which is most important. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जहां पर कि आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लास्टली यू हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जहां पर कि आपको यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। डायगोनलाइजेशन को अगर आप स्किप भी कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट। तो ये बात थी हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेक्टर कैलकुलस की, तो वेक्टर कैलकुलस जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इसमें अगर एटलीस्ट 5-6 घंटे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू विल गेट 2 to 3 मार्क्स इन वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं दैट आर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन, and then curl of a vector, Green's theorem, Stokes theorem, Gauss divergence theorem, line integral and vector space। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर इतने सारी चीजों को तो हम नहीं कर सकते हैं अभी राइट नाउ, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस ऑन विच आई कैन फोकस। सो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन you have to focus on gradient part, because every time they will ask questions on gradient part, right? डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट एंड इन अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एंड देन यू हैव ग्रीन्स थ्योरम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हमेशा ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे गेट के एग्जाम में, राइट। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला पार्ट, ग्रीन्स थ्योरम एंड देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, योर 70 to 80% of vector calculus is done. You can skip vector space, you can skip Stokes theorem, but if you have time you can do divergence part and curl of a vector, because in order to understand the Green's theorem and Gauss divergence theorem you have to learn divergence and curl of a vector। कुछ भी नहीं है, आधे घंटे का काम है बस, right? So this was all about vector calculus। So if I talk about differential equation, so in differential equation you will have order and degree। क्या होता है order and degree, उसके ऊपर मैंने काफ़ी लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए हैं ऐप के ऊपर, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एग्जॉस्टिव कंटेंट हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइडेड है। इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स एंड यू कैन कंप्लीट द होल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस इन जस्ट 20 days। बिलीव मी, आई कैन एश्योर यू दैट यू कैन गेट 10-12 marks out of 13 in your engineering mathematics portion by just completing in 20 days engineering mathematics whole syllabus। Okay, so degree and order, then linear differential equation, second order differential equation, exact differential equation, Cauchy differential equation and then particular integral। अभी इनमें से क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर कि आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू वाला पार्ट, जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर में वही पूछा जाता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर कि
कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला पार्ट होता है सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां पर हमारे पास में रूट्स आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रिपीटेड रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स, और हर एक केस के लिए हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा जाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, इसके बाद यू कैन स्किप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कम पूछा जाता है बट एकदम रेयरेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बहुत रेयर पूछा जाता है, सो यू कैन, इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन स्किप, बट दीज टू टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला पार्ट आपको करना ही है इफ यू वांट टू गेट गुड स्कोर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 नंबर का सवाल एकदम 100% आता है इस वाले पार्ट से, सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमेशा 2 नंबर का सवाल आएगा यहां से, ये वाले पार्ट से, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं बात करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कि आपको टॉपिक्स कम है बट क्वेश्चंस ज्यादा है। तो व्हाट यू कैन डू, you can do the basics of permutation, because if you don't know about permutation, NCR, NPR, how we apply these NCR, NPR in particular question, you won't be able to do probability questions, right? So you have to do the basics of permutation first, then you have to do the basics of probability, जहां पर कि आपको events के ऊपर बात करनी है, जैसे कि exhaustive event, mutually exclusive event, independent event, right? इनके ऊपर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बैग्स एंड बॉल्स, बहुत पूछा जाता है ये वाला टॉपिक बैग्स एंड बॉल का, जहां पर कि आपको विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट वाला केस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप देखेंगे PYQs में हर साल आपको विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट वाला केस पूछा जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यू कैन प्रिपेयर बेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जहां पर कि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, E of x, देन वेरियंस ऑफ x, राइट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्या कंडीशन होता है, इंटीग्रल -∞ to ∞ f(x) dx = 1, वो वाली कंडीशन आपको एकदम पता होनी चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NCR कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आपको PYQs में दिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। प्रोबेबिलिटी का जो सेशन है जो मैंने अपने ऐप के ऊपर लिया है, वहां पर मैंने काफी एग्जॉस्टिव तरीके से starting from the permutation, I have covered each and everything in the lecture on our exclusive app GateJet. If you want, you can download our app and you can enroll for the course. Okay. Now, if I talk about complex numbers, so in complex numbers you have basics of complex numbers, जहां पर कि आपको addition, multiplication of two complex numbers आपको आने चाहिए, right? Then you have Euler form, ठीक है। उसके बाद आपके पास में कॉची राइमन इक्वेशन आना चाहिए, जहां पर कि आपको एनालिटिकल फंक्शन, नॉन एनालिटिकल फंक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेसिड्यू थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन यू हैव टू यूज द रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर आपको रिपीटेड सिंगुलैरिटी, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, जहां पर कि आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता होना चाहिए, राइट। एंड देन रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर आप बात कर सकते हैं। देन यू कैन प्रिपेयर एनालिटिकल फंक्शन वाला पार्ट। एनालिटिकल फंक्शन, नॉन एनालिटिकल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में जो कंडीशन होती है u of x = v of y, राइट, वो वाला आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट calculus part, just a second. Yes. So I was talking about calculus part, right? So in calculus you have most important limits.
लिमिट्स में आपको क्या यूज करना है, सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है एल हॉस्पिटल रूल, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल. ओके, तो अगर लिमिट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे दैट मीन्स योर 50% ऑफ कैलकुलस पार्ट इज डन, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम you will see questions on L hospital rule. Okay, after that you can prepare maxima and minima, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, एंड देन यू कैन प्रिपेयर दिस टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, राइट. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव टाइम यू कैन प्रिपेयर कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल्स पार्ट में आप डबल इंटीग्रल को कर सकते हैं. I have also provided a exhaustive lecture on double integral on the YouTube itself, that is free, so you can watch that lecture also on integrals. I have provided a lecture on double integral for GATE. Okay, so now if I talk about Laplace and Fourier series, what you can do, you can prepare लैप्लास में आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं. लैप्लास डिफरेंट फंक्शन का कैसा होता है, साइन एक्स का लैप्लास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का लैप्लास कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास कैसा होता है, एंड बेसिक थिंग्स ओनली. इतना से आपका काम खत्म हो जाएगा. एंड इन फूरियर सीरीज यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फूरियर सीरीज का पार्ट, बेसिक फंक्शन क्या होता है, हाफ रेंज सीरीज क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, बेसिक पार्ट ओनली, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क exhaustive question on Laplace and Fourier. They will ask only the formula based questions that you can prepare in only one day. 2-3 घंटा अगर आप देंगे तो Laplace Fourier दोनों खत्म हो जाएगा, राइट. आई थिंक अच्छा न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर मैंने बात नहीं की, तो न्यूमेरिकल मेथड की अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको इन सम ऑफ द ब्रांचेस न्यूमेरिकल मेथड्स हैज बीन एक्सक्लूडेड. सो अगर आपके ब्रांच में न्यूमेरिकल मेथड्स पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है ट्रेपेजॉइडल रूल, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर सिम्पसन 1/3 रूल, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर न्यूटन रैप्शन मेथड. ये 3 अगर आपने कर लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा. अगर आपके ब्रांच में न्यूमेरिकल मेथड्स आता है तो. देयर आर सर्टेन ब्रांचेस जहां पर कि न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं आता है, दे आर नॉट, दिस टॉपिक हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सम ऑफ द ब्रांचेस. तो आपको अपने ब्रांच का एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा कि आपके ब्रांच में क्या न्यूमेरिकल मेथड्स इंक्लूडेड है या नहीं है, बिकॉज देयर आर 15-20 ब्रांचेस. अभी किस ब्रांच में है किस ब्रांच में नहीं है आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट अगर आपके ब्रांच में न्यूमेरिकल मेथड्स इन्वॉल्व है देन यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, एंड देन न्यूटन रैप्शन मेथड. ओके, दिस इज एनफ. और एट लास्ट यू कैन प्रिपेयर यूलर्स ऑल्सो, यूलर्स मेथड as well. Okay, so this was all about whole engineering mathematics, how you can prepare engineering mathematics in just 20 days by focusing on the important topics that are most frequently repeated. Okay, so I would suggest you to download our app, and if you wish you can enroll for the course. Okay, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.